Good afternoon, everyone. We were dealing with the reconstitution of the partnership. In the three cases, like admission, retirement, and death, there's a reconstitution of the partnership. There is an existing partnership. There is already constituted partnership. हम उसको reconstitute कर रहे हैं. We are changing. Whenever there's a change in the relationship between the partners, that is called as reconstitution of the partnership. Whenever there's a reconstitution of the partnership, we have to do four adjustments. First adjustment, distribution of accumulated profits and losses. If on a liability side there are some accumulated profits, or on asset side there are some accumulated losses, those will be transferred to old partners in the old ratio. Losses अगर वो asset side पे है, they are debit balances. So accumulated losses like P&L debit balance, profit loss और debit balance मतलब net loss, right? अगर आपने asset side पे रखा है मतलब you are not distributed it. Now you will distribute among old partners in old ratio. You will deduct it from their capital. I mean, you will debit the capital of old partners in the old ratio. If there are general reserve, there are some capital reserve, there are some profit and loss credit balance on a liability side. Means those profits were kept aside. You are not distributed them between the partners. Now, at the time of admission, retirement, and death, we will distribute those profits among old partners in old ratio. We will add into the capital. I mean, we will credit to the capital of old partners in the old ratio. That is the first adjustment. Second adjustment is revaluation of assets and liabilities. Whenever there is an admission, retirement, and death, first we will revalue, and whatever gain or loss on revaluation will be distributed between old partners in the old ratio. If asset increases, it is a gain. If asset decreases, it is a loss. If liability increases, loss. And if liability decreases, it is a gain. And we will find out, right, net gain or net loss on revaluation by preparing P&L adjustment account or a revaluation account. And whatever profit or loss on revaluation, again to be transferred to whom? Old partners in old ratio. अगर profit है तो that will be added in their capital, means हम old partners के capital को credit करेंगे. If there is a revaluation loss, that will be subtracted, deducted from their capital. Old partners को old ratio में debit करेंगे. That is the revaluation adjustment. Third important adjustment is goodwill adjustment. There are many ways by which goodwill adjustment can be done. There are various options. One option, raise the goodwill, means goodwill बैलेंस शीट में ऐड करना. जिस वैल्यू पे उन्होंने बोला उस वैल्यू पे हम गुडविल में बैलेंस शीट में गुडविल लेके आएंगे. सो इट इज इंक्रीज इन असेट बेसिकली. सो इट इज अ प्रॉफिट. दैट गुडविल जो हम असेट में ऐड कर रहे हैं, राइट, दैट अमाउंट इज अ प्रॉफिट बेसिकली. उतने से असेट इंक्रीज हो रही है. दैट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. उसको बोलते हैं रेज द गुडविल. सेकंड इज समटाइम्स दे मे आस्क यू टू राइट ऑफ द गुडविल. Means there is a goodwill in the balance sheet and they have asked you to write down जैसे depreciation जैसे. So goodwill will be written off. To that extent, I will reduce the value of the goodwill on the asset side. That is a loss. That loss again belongs to old partners in old ratio. I will deduct or I will debit the old partners capital in the old ratio. Then they may ask you to raise and write off simultaneously. पहले मैंने बोला रेज द गुडविल, सेकंड मैंने बोला राइट ऑफ द गुडविल. दोनों एडजस्टमेंट किस रेशियो में करने? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. गुडविल रेज करके रखना है या ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है. जब ऐसे रहेगा, दैट इज टू बी डन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बट बोथ द एक्शंस कम्स टुगेदर. रेज करो और फिर तुरंत राइट ऑफ करो. सो व्हेन यू रेज द गुडविल, वो जो प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. एंड तुरंत राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करते टाइम जो लॉस है दैट विल बी डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. सो जब हमें बोलते हैं जस्ट रेज ओल्ड इन ओल्ड, जस्ट राइट ऑफ ओल्ड इन ओल्ड, रेज करके राइट ऑफ करो, तो फर्स्ट एक्शन रेज करने की होगी ओल्ड इन ओल्ड
And second action write off की होगी new in new. And the last one, the new partner brings cash for his share in the goodwill. Suppose goodwill of the firm is 1 lakh and the new partner is 1/4 share. So 1 lakh में से 1/4. He will bring 25,000. He will bring 25,000. He will bring the 25,000 in cash, and that will be credited, that will be distributed to the partners who sacrificed for the right incoming partner. So वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बोला था हाउ टू आइडेंटिफाई द सैक्रिफाइस रेशियो. मैंने आपको बोला था कि जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो. लाइक A and B were the partners in 3:2 and they admit C for 1/5 share. बस इतना ही लिखा है 1/5 share. तो आंख बंद करके बोलो C ने जो 1/5 गेन किया है that is sacrificed by A and B in their old ratio 3:2. ऐसे क्वेश्चंस में old partners itself are the sacrificing partner and their sacrificing ratio itself is the old ratio. This is one thing. Second, A and B are the partners sharing profits and losses equal. They admit a new partner for 1/3 share. जस्ट 1/3 शेयर लिखा है. उसको 1/3 किसने दिया? ए ने दिया, बी ने दिया, कुछ लिखा नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस में जिसको मैं कंडीशन 1 वाले क्वेश्चंस बोलता हूं, राइट, इसमें राइट ए एंड बी ओनली हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर सी इन देयर ओल्ड रेशियो 1:1. सो सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1. मतलब जो सी गुडविल आएगा कैश में, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दिस एग्जांपल. या समटाइम्स दे गिव यू न्यू रेशियो. Like A and ABC are the partners. ABC are the partners 3:2. ABC are now the partner 3:2:1 ratio. A and B का old ratio 3:2 is their new ratio 3:2. ऐसे cases में भी the A and B are only the sacrificing partners, sacrificing in their old ratio. इसके सिवा अगर कोई दूसरी केस है, मतलब एग्जांपल A and B are the partners 3:2 and now ABC are the partners 1:1:1. 3:2 and 1:1 is not the same. ऐसे केसेस में हमें वो टेबल करना होगा गुडविल के लिए. टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो, एंड फिर हम राइट वो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं. ठीक है. सो एंड द लास्ट एडजस्टमेंट वाज कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट कैन बी डन बाय द टू वेज, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस और by taking the capital of the old partners as a base, whatever is given in the question, right, हम accordingly करेंगे. ये एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाने वाला हूँ, राइट. एक प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, बट मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव फाइंड दैट डिफिकल्ट बिकॉज वो डायरेक्टली कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था. तो हम थोड़े सिंपल क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, राइट. इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड धीरे धीरे मैं आपको एंट्रीज भी सिखाऊंगा, हाउ टू पास द एंट्रीज. हमने इलस्ट्रेशन 1 किया था. इलस्ट्रेशन नंबर 2. इलस्ट्रेशन नंबर 2 एवरीवन. Yeah. Can I start? Illustration number 2. Everyone. Illustration number 2. Padma and Kumud. Padma and Kumud share profit and losses in the ratio of 3:2. It is their PSR. 3:2 is their PSR. In the partnership firm, their balance sheet as on 31st March 2019. And Padma and Kumud are the old partners. Their old ratio is 3:2.
ठीक है. Their balance sheet as on 31st March 19. Creditors, bills payable, bank loan, general reserve is profits to be distributed between Padma and Kumud in the ratio of 3:2. 7,500 to be distributed. Reserves है, reserves and surplus, accumulated profits and losses. So 7,500 we will distribute between Padma and Kumud in the ratio of 3:2. ठीक है. So 7,500 divided by 5 करोगे तो 1,500 आएगा. 1,500 multiplied by 3, इसके कैपिटल में हम 4,500 ऐड करेंगे और कुमुद के कैपिटल में 3,000 ऐड करेंगे. ठीक है. सो ये रिजर्व्स हट जाएंगे और कैपिटल में ऐड हो जाएंगे. आगे दैट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. बैंक बैलेंस है, उसका अलग अकाउंट करेंगे. बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स लेस आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग. डोंट गो टू द वैल्यूज, कोई वैल्यूज की जरूरत नहीं. ऑन द नेक्स्ट डे 31st मार्च की बैलेंस शीट दी है. नेक्स्ट डे पे they admitted Asha on the following terms. So Asha is incoming partner for 1/2 share in the profits in the future. आगे से आशा का शेयर 50% होगा. आशा का शेयर 50% होगा, 1/2. आशा should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. Can anyone tell me what is the sacrifice ratio? सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, कोई मुझे बोलेगा? एनीवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? अब वो आपको देख के समझ में आना चाहिए. रक्षण बोल रहा है इक्वल है, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. प्रियांशु बोल रहा है 3:3, आई डोंट थिंक सो. नो, मैक्सिमम बच्चों ने बराबर आंसर दिया सर 3:2. आंख बंद करके बोलना चाहिए. नया पार्टनर का शेयर 1/5 है, 1/2 है. नए पार्टनर का शेयर 1/2 है, उसको 1/2, आशा को 1/2 किसने दिया? पद्मा ने दिया या कुमुद ने दिया? कुछ लिखा है क्या सर? कुछ नहीं लिखा. ऐसे केस में हम मानते हैं पद्मा एंड कुमुद ने दोनों ने मिलकर दिया 1/2. कौन से रेशियो में दिया होगा? 3:2. कौन से रेशियो में दिया? 3:2. सो आगे. सो कोई मुझे बोलेगा ये जो गुडविल आया 15,000, ये 15,000 किसको मिलेगा? पद्मा एंड कुमुद को मिलेगा. किस रेशियो में मिलेगा? 3:2. मतलब पद्मा के कैपिटल में हम ऐड करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 5 3,000 आएगा. 9,000 ऐड करेंगे पद्मा का, 9,000 पद्मा का रहेगा, राइट. इस बात ये जो 15,000 है ये पद्मा एंड कुमुद में बटेगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो 3:2. सो पद्मा को मिलेगा 9,000, कुमुद को मिलेगा 6,000. ठीक है. वो लेके आशा लेके आएगी, बट उसके इसमें नहीं ऐड होगा. शी हैज टू गिव इट टू द पर्सन हु सैक्रिफाइस फॉर हर. उसको कंपेंसेट करना होगा. शी हैज परचेज गुडविल एंड उसके लिए उसको पेमेंट करना होगा. किसको? पद्मा एंड कुमुद को इन 3:2. आगे हाफ ऑफ द गुडविल is to be withdrawn by the old partners. फिर क्या हो गया? हमने पद्मा के कैपिटल में 9,000 ऐड किया एंड कुमुद के कैपिटल में 6,000 ऐड किया. बाद में इसमें से हाफ, मतलब पद्मा ने 4,500 ड्राइंग्स कर लिए एंड इसने 3,000 ड्राइंग्स कर लिए, राइट. हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. उन्होंने बोला हम 50% गुडविल लेके जाएंगे. ठीक है, इट इज ड्राइंग्स, कैपिटल से माइनस होगा, कैश से माइनस होगा. पहले क्या होगा? शी विल ब्रिंग 15,000, तो एक कैश में ऐड हो जाएगा 15,000, इसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा 9,000, इसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा 6,000. और बाद में ये लोग ड्राइंग्स करेंगे 50% ऑफ द गुडविल. उनको जितना मिला है ना उसका 50%, तो ये लेके जाएगा 4,500. ड्राइंग्स है, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस. ये 3,000 लेके जाएगा, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस. आगे ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स. द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी 5%. बोथ आर द लॉसेस. रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे, असेट से माइनस होकर रिवैल्यूएशन डेबिट में आएंगे. नेक्स्ट, राइट. आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000. अब भी आरडीडी कितना है? 2,400. ऑलरेडी आरडीडी कितना है? 2,400. अब आरडीडी कितना करना है? 3,000. आरडीडी इंक्रीज करना है. आरडीडी द लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस. आरडीडी द लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस. आरडीडी इंक्रीज करना है, मतलब लॉस इंक्रीज करना है. कितने से इंक्रीज करना है?
600 से इंक्रीज करना है, दैट इज अगेन ए लॉस, 600 का लॉस है। कैसे लिखेंगे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू 16,050, फर्नीचर को इंक्रीज करना ये गेन है, एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, ये भी गेन है। पास नेसेसरी इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहले मैं लेजर करूंगा एंड लेजर से मैं सिखाऊंगा इंक्रीज कैसे करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ, राइट, न्यू फर्म, बैलेंस शीट as on 1st April 19 after admission, then capital of 3 partners, revaluation account and bank account. Let's prepare the format. समझ के करो, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो मैं आज ले रहा हूं संडे को, आप मुझे बोलोगे सर संडे को आपने लेक्चर रखा वगैरह, ठीक है। आप घर पे हो, घर पे संडे क्या या सैटरडे क्या, मुझे तो डेज भी याद नहीं रहते, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड नाउ इट इज आई एम अलोन एट माई होम, सो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर, क्या पेज नंबर कह रहे हैं, 137। लिखो, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट, एज ऑन 1st April 19 एंड इनटू ब्रैकेट लिखने का आफ्टर एडमिशन। आप जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे लिख सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एंड ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है मैं आपको समझाता हूं, इसके पीछे रीजन समझ लेना। एडमिशन रिटायरमेंट डेट इज फॉर 20 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, इससे बहुत डिफिकल्ट है, बट ये बेस है। अगर ये अच्छे से आ गए ना तो वहां पे भी इजी जाएगा, वहां पे तो इससे भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, बट मैं डरा नहीं रहा हूं, ये बेस है, ये समझ लेना, ठीक है। हाँ, उसमें तो कैलकुलेटर यूज करना तो थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन वगैरह, बट एडजस्टमेंट समवॉट क्रिटिकल रहेंगे, बट ये बेस है। अगर बेस क्लियर है तो अपने आप आगे इजी होगा। एंड आप बोलते हो सर आप फाउंडेशन के बारे में क्यों बोलते हो, तो कैसे है कि आपको देखो, कोई मुझ आप सीएस करो, सीडब्ल्यू करो, ये चैप्टर हर इसमें फाउंडेशन में, तो किधर भी जाओ आपको ये करना ही करना है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। बस मैं आपको क्या रहेगा कि अगर मैं बोलूंगा ये फाउंडेशन में, तो यू विल टेक इट मोर सीरियसली, क्योंकि आपको पता ये लगेगा, बस यही रीजन है बोलने का। कैपिटल कितने, इतने लाइन इज मोर देन इनफ। 3 लोग हैं तो 3 लोगों का कैपिटल। आई डोंट एक्सपेक्ट 4 पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि एग्जाम में वो उतनी स्पेस भी नहीं रहेगी, 3 इज मोर देन इनफ, ठीक है। देन टी फॉर्म में रिवैल्यूएशन करूंगा ओपन, और इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं कि इतना कैपिटल रखना है उतना कैपिटल रखना है, कुछ नहीं लिखा है। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। हाँ आई नो उन्होंने एंट्रीज पूछे, बट मैं आपको एंट्रीज अब करना सिखाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो गिव द हेडिंग, कैपिटल्स, पद्मा, कुमुद एंड आशा, ठीक है। दिस इज रिवैल्यूएशन, या कोई लोग उसको पेंडल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इफ यू नो रिवैल्यूएशन डेबिट इज लॉस, मतलब या तो डिक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट इज ए प्रॉफिट, मतलब इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। दिस इज योर बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो मैं यहाँ पे बैंक लिख रहा हूँ,
ठीक है, और फिर हम इंट्रीज लिखेंगे। डोंट वरी, मैं इंट्रीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट। आपके सामने क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं। या मिल गया मुझे क्वेश्चन। या लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है? नहीं सर। लिखो लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, और क्वेश्चन में जैसे बैलेंस शीट लिखी होती है ना उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। लाइक क्रेडिटर्स पहले लिखा तो हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं, डायरेक्टली बाहर लिख दो। बिल्स पेएबल कोई चेंजेस नहीं है सर, बाहर लिख दो। बैंक लोन कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो। रिवैल्यूएशन नहीं है कुछ भी। 48। रिजर्व्स कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं, बाय। एक लाइन रहने दो ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए। बाय जनरल रिजर्व, वो क्रेडिट है, लाइबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट है। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट पे ट्रांसफर करेंगे बाय जनरल रिजर्व। बोलो, इन दियर रेशियो 3:2। नए पार्टनर को रिजर्व नहीं देने, राइट। 7,500 इन दियर 3:2, कितना आया था हमारा? 4,500 एंड 3,000। सो हम पी के कैपिटल में ऐड किए 4,500, के कैपिटल में ऐड किए 3,000। ठीक है, आगे इसकी एंट्री लिख सकते हो? हाँ सर लिखो, चलो जर्नल एंट्री। जर्नल, ठीक है। डेट 2019, डेट अप्रैल 1 को एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अप्रैल 1। क्या एंट्री है देखो, आपको समझ में आना चाहिए। जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट होता है, जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट है, मतलब जनरल रिजर्व डेबिट है। एंड आपने पी के कैपिटल के क्रेडिट पे लिखा है एंड के कैपिटल के क्रेडिट पे लिखा है। सो जिसके सामने बाय है वो डेबिट है, जनरल रिजर्व डेबिट। पी को क्रेडिट है, के को क्रेडिट है। लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 9,000। 9,000 नहीं, 7,500। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 टू पद्मा कैपिटल, टू कुसुम कैपिटल 4,500 3,000। सो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व क्रेडिट था, लाइबिलिटी में था, अब डेबिट हो गया, मतलब जनरल रिजर्व कैंसिल हो गया और किस में ऐड हो गया? कैपिटल में ऐड हो गया। जनरल रिजर्व कैंसिल कर दिया और पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, देन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लिख लेना, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट। सो ऐसे एंट्री करते रहने की। चलो अब फिर बैलेंस शीट में आ जाओ एवरीवन, बैलेंस शीट में आ जाओ। फिर कैपिटल्स, ओपनिंग बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं आती, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती। ठीक है, 45,000 60,000, 45,000 एंड 36,000, सॉरी। नहीं तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री लिखना स्टार्ट कर दोगे, गारंटी नहीं तुम लोगों की। बैंक, ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी एंट्री नहीं आएगी। हमारे पास पहले 20,500 थे आशा आने के पहले, उसके बाद बिल्स रिसेबल, कोई चेंजेस बोले कि बिल्स रिसेबल नहीं, मैं यहाँ पे बैंक लिख के रखता हूँ, बाद में जो फाइनल बैलेंस आएगा उसको लिख देंगे, अभी फिलहाल रहने दो। बिल्स रिसेबल कोई चेंजेस नहीं, बिल्स रिसेबल में 11,400। उसके बाद राइट, डेटर्स, देखो मैं लिखते कैसे हूं। डेटर्स इनर कॉलम में 62,400। उन्होंने हमें आरडी को चेंज करने को बोला है, उन्होंने हमें
जनरल फंड की क्या एडजस्टमेंट दी है? किधर दी है मैडम जनरल फंड की एडजस्टमेंट? मुझे नहीं दिखी। श्रावणी मैडम किधर है जनरल फंड की एडजस्टमेंट? देयर इज नो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, किधर है बोलो? एक भी एडजस्टमेंट नहीं है मैडम। ठीक है, आई डोंट नो तू कौन सा क्वेश्चन देख रही है। डेटर्स 62,400, डेटर्स 62,400, आगे। हाँ तो मैंने हमें जनरल रिजर्व जो होते हैं ना, जनरल रिजर्व, दे आर प्रॉफिट्स। ये हमें पार्टनर्स को खुद होके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किसको बोलने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये वाली है। जनरल रिजर्व्स, आपने प्रॉफिट्स बाजू करके रखे थे, वो किसके? ओल्ड पार्टनर्स के, तो अब उनको बांट दो। दिस इज राइट टाइम, रिकंस्ट्रक्शन इज द राइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये उनको लिखने की जरूरत नहीं, हमें खुद होके समझना है। आगे नेक्स्ट, आगे अब हम करेंगे डेटर 60,400 लेस आरडीडी। कैसे करते हो ध्यान देना एवरीवन, लेस आरडीडी इनर टू इनर कॉलम में। अभी कितना है? 2,400। अभी कितना है? 2,400। एंड नीचे पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है, राइट? आरडी टू बी मेंटेन एट 3,000, होना कितना चाहिए? 3,000। आरडी होना कितना चाहिए? 3,000। मतलब हमें आरडी कितने से इंक्रीज करना है? 600। हमें आरडी कितने से इंक्रीज करना है? 600। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आरडीडी इंक्रीज करना है, लॉस हो गया यहां पे, पी एंड एल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन डेबिट पे, टू आरडीडी। इंक्रीज इन आरडीडी इज लॉस, डिक्रीज इन आरडीडी इज गेन। लॉस, आरडीडी लॉस होता है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, लॉस इंक्रीज हो रहा है तो लॉस, लॉस डिक्रीज हो रहा है तो गेन। आरडीडी अभी 2,400 है, हमें 3,000 करना है। मतलब आरडीडी कितने से इंक्रीज करना है? हमें आरडीडी इंक्रीज करना है 600 से। एंट्री रिवॉल्यूशन की एक साथ लिखेंगे, अभी इतना लिख के रखना। नेक्स्ट, आगे। सो ये नहीं समझा इसे कितने लोग हैं? रेज द हैंड, या कोई जिसको नहीं समझा पूछो। पहले आरडीडी 2,400 बैलेंस शीट में, उन्होंने हमें 3,000 करने को बोला है, तो आरडीडी इंक्रीज किया है 600 से। इंक्रीज इन आरडीडी, इंक्रीज इन लॉस इज लॉस इटसेल्फ। ठीक है, आरडीडी क्रेडिट होता है, क्रेडिट इंक्रीज कर रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है। दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। आगे नेक्स्ट, ठीक है। आरडीडी हो गया सर, यस। स्टॉक, स्टॉक को कुछ कम करने को बोला है शायद से उन्होंने, डिप्रिसिएट करना है। अभी स्टॉक कितना है? 36 इनर कॉलम में, लेस 10% राइट ऑफ, 3,600 डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 3,600। सो बचेगा 32,400। कितना बचेगा? 32,400। आरडीडी स्टॉक पे लॉस हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, टू स्टॉक 3,600 का लॉस हो गया। जैसे लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट, लॉसेस आर डेबिटेड, रिवैल्यूएशन डेबिट। आगे उसके बाद है फर्नीचर, लिखो फर्नीचर। फर्नीचर को भी उन्होंने चेंज करने को बोला है कुछ, तो इनर कॉलम में लिखो फर्नीचर। कितने का फर्नीचर बैलेंस शीट में दिया है? 14,100। एंड उन्होंने कुछ तो लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है, फर्नीचर इज टू बी एप्रिसिएटेड अप टू 16,050। हमें उसको 16,050 तक लेके जाना है, मतलब हमें फर्नीचर में ऐड करना है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इन असेट इज अ गेन, एप्रिसिएशन। सो कितने का एप्रिसिएशन है? मेरे हिसाब से 1950 का एप्रिसिएशन है। मेरे हिसाब से 1950 का एप्रिसिएशन है। कितने का एप्रिसिएशन है? अगर गलत है तो मुझे बोल देना। 1950 का एप्रिसिएशन है। आगे, ठीक है, देखो गलत है तो बोल देना। सो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, असेट इंक्रीज हो गई, इज अ गेन, इज अ प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे आएगा। असेट इंक्रीज डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट रहेगा बाय फर्नीचर 1950। इन सब की एंट्री एक साथ लगेंगे, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट, फिर फर्नीचर के बाद क्या है? मशीनरी, मशीनरी।
मशीनरी कितने की है? 15,000 की मशीनरी है, 15,000 की मशीनरी है, उसको डेप्रिसिएट करना है कुछ, तो उन्होंने बोला है लेस, उन्होंने बोला है हमें 5% से मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 15,000 का 10% 1,500 है, उसका हाफ 750 होता है। तो अब बचेगा 14,250, 14,250। असेट डिक्रीज हो गई, मशीनरी डिक्रीज हो गई, लॉस, लॉसेस आर डेबिटेड, किसको डेबिट किया जाएगा? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 750, 750। उसके बाद बिल्डिंग 45,000 है, उसको एप्रिसिएट करना है, बिल्डिंग अभी इनर कॉलम में 45,000 और हमें उसको एप्रिसिएट करना है 20% से, प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 9,000 आएगा। 45,000 का 10% 4,500 आएगा, उसका डबल 9,000, 54,000। सो बिल्डिंग हो गई 54,000 की, बराबर 54,000 की बिल्डिंग हो गई। सो आप ध्यान देना, इंक्रीज इन असेट, अरे हाँ, कोई बोल रहा है सर आपने वहां पे मशीनरी क्यों लिखा, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा? राइट तो क्यों ऐसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, रीजन, डेप्रिसिएशन करने के लिए यू मस्ट ओपन पी एंड एल, हम पी एंड एल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, पहले हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? पी एंड एल टू असेट, सॉरी डेप्रिसिएशन टू असेट, एंड उस डेप्रिसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट इंटरफेयरिंग, विदाउट ओपनिंग पी एंड एल, हम डायरेक्टली इफेक्ट किस में देते हैं? रिवैल्यूएशन में दे देते हैं। सो डायरेक्टली असेट को कम करते हैं, वी डोंट ओपन पी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक एंट्री में डायरेक्ट एंट्री मार रहा हूं, कंबाइन एंट्री मार रहा हूं, रिवैल्यूएशन टू असेट, मैं ये एंट्री नहीं डाल रहा हूं, डेप्रिसिएशन टू असेट एंड फिर रिवैल्यूएशन टू डेप्रिसिएशन, ऐसे दो एंट्री नहीं डाल रहा हूं, नहीं तो मुझे दो एंट्री डालनी होगी। एक एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन देने की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू असेट, और फिर उस डेप्रिसिएशन जो डेबिट है उसको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा, रिवैल्यूएशन टू डेप्रिसिएशन। ऐसे दो एंट्री लिखनी पड़ेगी मुझे अदरवाइज, इसलिए हम वो करते नहीं, हम डायरेक्टली नेट एंट्री मार देते हैं, क्या? रिवैल्यूएशन टू असेट। ठीक है, बट यहाँ पे लिखते टाइम थोड़ा ठीक से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन ठीक से करेंगे। आगे सो 54,000, आर्यन पूछ रहा है सर आप डायरेक्टली एंट्री क्यों नहीं लिख रहे हो? डायरेक्ट एंट्री ना लिखने का रीजन है, यहाँ पे एवरीवन कैन नॉट पास डायरेक्ट एंट्रीज, तो यहाँ पे ऐसे भी बच्चे जो लेजर के थ्रू एंट्री पास करेंगे, मैं इसमें मेरे लेजर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंट्रीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो डायरेक्टली इंट्रीज कर सकते हो दे कैन डायरेक्टली पास द इंट्रीज, आई डोंट हैव एनी इशू। देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हैं, राइट, दे आर मोस्ट वेलकम, कोई गल नहीं। बट मैं हर क्वेश्चन में लेजर भी सॉल्व करता हूँ और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इंट्रीज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 54,000 गेन हो गया 9,000 का बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग 9,000, बिल्डिंग 9,000। उसके बाद उसके बाद बिल्डिंग हो गया सर। अच्छा सर, जो भी बैलेंस शीट में दिया है एक जगह पे गया और अकॉर्डिंग हमने रिवैल्यूएशन किया। अब एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं, एक एक एडजस्टमेंट। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। फॉर 1/2 शेयर आशा ब्रिंग्स ₹30,000 एज हर कैपिटल। आशा ने 30,000 का कैपिटल है, क्या एंट्री आती है? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, एज कैपिटल 30। कैश इंक्रीज हो गई, बैंक बैलेंस इंक्रीज, डेबिट हो गया, तो कहां पे? तो क्रेडिट होना चाहिए। आशा के इसमें आएगा बाय बैंक इनटू ब्रैकेट कैपिटल, राइट। कितना लाया उसने कैपिटल? 30। ठीक है, इसकी भी एंट्री हम करेंगे, क्या एंट्री की? बैंक टू आशास कैपिटल। फिर आगे लिखा है उसने 15,000 गुडविल के लिए लाए, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पैसे आएंगे तो बैंक में इंक्रीज करो टू गुडविल 15,000। अरे 15,000 किसको देने? ये 15,000 जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको देने। किन्होंने सैक्रिफाइस किया है? ओल्ड पार्टनर्स ने किया है। सर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस किया? सर ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस किया, 3:2 में। तो 15,000 हम उनके कैपिटल में ऐड करेंगे बाय गुडविल।
डेबिट हुआ, सेकंड इफेक्ट दे रहा हूं बाय गुडविल इनटू ब्रैकेट एसआर। एसआर स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस रेशियो। 3:2 में मैंने ढूंढा था कितना था, 9,000 एंड 6,000। ठीक है। सो ए के जेब में, सॉरी पी के जेब में 9,000 डाले, के जेब में 6,000 डाले। एंड आगे वाले एडजस्टमेंट में लिखा है ये जो हमने उनको गुडविल के लिए दिया है, पी को कितना दिया 9,000, के को कितना दिया 6,000, उसमें से 50% वो लेके चले गए। लेके जाने दो, ड्रॉइंग जैसे रहेगा, टू बैंक। ये लेके गया 9,000 का 50%, 4,500। ये 6,000 का 50% लेके गया, 3,000 लेके गया। डोंट से ड्रॉइंग्स, अदरवाइज आपको दो एंट्री पास करनी होगी, पहले ड्रॉइंग्स टू बैंक एंड फिर कैपिटल टू ड्रॉइंग, ऐसे दो एंट्रीज डालनी होगी। इसलिए अवॉइड पासिंग द डबल एंट्रीज, कंबाइन मार दो बाय। राइट, पी लेके गया बाय, के लेके गया, पी लेके गया 4,500 कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, और ये लेके गया 3,000। उसने 15,000 लाए थे, 15,000 उसने लाए, देखो बैंक में 15,000 आ गए, फिर हमने उसको 9,000 दे दिए, उसको 6,000 दे दिए, उनके कैपिटल में ऐड कर दिया, और लिखा है कि जितना आपने उनको दिया है गुडविल उसमें से 50% वो लेके गए। असेट से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्या डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे ऐसे लिखा नहीं तो ड्रॉइंग लिखेंगे तो करेंगे ना, नहीं तो क्यों करेंगे। आगे एडजस्टमेंट 1 डन, एडजस्टमेंट 2 डन, एडजस्टमेंट 3 इज ऑलरेडी डन, एडजस्टमेंट 4 इज ऑलरेडी डन, एडजस्टमेंट 5 इज ऑलरेडी डन। ठीक है, तो अब हम रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हैं। चलो मैं इंटरेस्ट एक साथ लिखूंगा, ध्यान देना, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस होगा। एंड जहां से मैं देख रहा हूं क्रेडिट इज मोर, आई थिंक यस सर, क्रेडिट इज मोर, 950 10 कितना है, लेट मी चेक। हाँ क्रेडिट ज्यादा ही है, 10,950, मतलब प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे। ठीक है, कितना प्रॉफिट है, लेट मी चेक। 0 0 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 6 19, 1 कैरिड, 1 कैरिड, ओ नहीं नहीं गलत लिया मैंने, 50 आ गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 19 0, 1 कैरिड 4 6, इज इट 6,000, चेक करो। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 6,000 2। ये किसका 6,000 रहेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का या न्यू पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स, किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का, लिखो। ठीक है, 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक से लिखो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कौन कौन ओल्ड है, क्या नाम है, पी एंड के, या मैं इसको थोड़ा नीचे खींच के भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट, मैं थोड़ा नीचे खींच के लिखता हूं। ठीक है, सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पी एंड के, इनर कॉलम में लिखने का 3/5 2/5, मतलब 6,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1,200 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। पी को देंगे 3,600, के को देंगे 2,400। ये आशा बोल रही है अरे मुझे दे दो इसमें से, रिवैल्यूएशन में से। हम उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये हम थे तब का प्रॉफिट है भाई, तो आशा को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यहाँ पे डेबिट है, उधर क्रेडिट आएगा बाय रिवैल्यूएशन इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट। क्या 3,600 2,400, पी के कैपिटल में ऐड किया 3,600, के की कैपिटल में ऐड किया 2,400। इंट्रीज लिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद कोई उन्होंने हमें गुडविल कैपिटल एडजस्टमेंट करने को बोला है क्या, नहीं। देखो 3 एडजस्टमेंट कर ली, कौन कौन से एडजस्टमेंट की, एक एडजस्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस जो हाईलाइट किया ग्रीन में, उसके बाद रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर ली, रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस आया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बांट दिया,
फिर हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कर ली, 15,000 गुडविल आया था, ये गुडविल हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट दिया. इन दिस एग्जांपल ओल्ड पार्टनर्स इटसेल्फ आर अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग इन द ओल्ड रेशियो. 3 एडजस्टमेंट हो चुकी है. सर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं लिखा है तो मत करो, किसने बोला आपको करने को, क्वेश्चन में होगा तो. अब सर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है, यस सर. कैन सर वी क्लोज द कैपिटल, डेफिनेटली. जनरली कैपिटल क्रेडिट साइड इज हेवियर. ले लो 45,000 प्लस 9,000 या 4,000, 49, 49 प्लस 9, 49 प्लस 9, 58, 58 प्लस 3, 61, 62,100 है. चेक करो. 600, 1 कैरिड, 5, 57, 600. उसके बाद नेक्स्ट इसका कितना है, 36 प्लस 3, 39, 39 प्लस 6, 45, 45, 47, 400. माइनस 3,000, 44,400. इसका कैपिटल इतना बाकी है, इसका कैपिटल 30,000 बाकी है. तो लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग कैपिटल से, और ये कहां पे आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे. क्या गलत है किसी का, नहीं बराबर है, बराबर है, गुड. टू इधर लाइबिलिटी में लिखा जाएगा कैपिटल्स. अब इसमें नया पार्टनर का भी कैपिटल आएगा. क्या क्या है, पी के आशा 57,600, देन 44,400, देन 30,000. Therefore, total is 000, 1 carried, 8, 12, 1 carried, 10, 13, 1,30,000 मेरी टोटल आ रही है as कैपिटल की. मैं बैलेंस शीट हैज टू टैली, बट बैलेंस शीट के लिए मुझे कैश अभी तक मैंने टैली नहीं किया है. मैं डायरेक्टली बैलेंस बोल सकता हूँ. एक्चुअली 15,000 लाए, उसमें से 50% लेके गए, मतलब 7,500 आए. 60,000 बैलेंस होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज 22,500 प्लस 7,500 30,000 रहेगा, 30 प्लस 30 60 रहेगा. चेक करो, अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो. ये 60,000 यहाँ पे लिखो, बैंक बैलेंस 60,000. हाँ, अब असेट साइड की टोटल ले लो, 400, 400. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बैलेंस 500, 500. नेक्स्ट 7 प्लस 8, 15, 15 प्लस 2, 17, 1 कैरिड, 4, 7, 11, 11 प्लस 13, 24. मेरे हिसाब से 2,47,000, 2,47,500. अच्छा, डेटर को बाहर नहीं लिया, लेता हूं 400, 59,400. गुड. सो अब देखो 400 प्लस 400, 800, 800 प्लस 1,200, 1,200 प्लस 300, 1,500, 1 कैरिड, 1, 2, 11, 13, 19, 19, 23, 19, 23, 23 plus 4, 27, 2 carried, 8, 9, 14,
17, 18, 19, 19 plus 5, 24. Yes, tallied. लिखो. Try to understand. I know they have asked you to pass journal entries, but आपको इनिशियल के फेजेस में प्रिपेयर बोथ रीजन प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. अब मैं एंट्री समझाऊंगा, ध्यान देना. चलो मैं 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो हाइड करता हूं, मतलब आपको पूरा दिखेगा. मैं जानबूझ के सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं तो आपको क्लिक होगा कैसे सॉल्व करना होता है. ठीक है. लिखो, जल्दी लिखो. दिस योर बैलेंस शीट. एंड आरती यू विल गेट योर आंसर. किसी ने पूछा था, आरती ने पूछा था या किसी ने? लेट मी चेक. हम एंट्री करते टाइम देखो हम क्या करते हैं. हाँ, हो गया तो बोलो, सो दैट आई कैन मूव टूवर्ड्स एंट्रीज. ओके, अब ध्यान देना एंट्रीज पे. गुड. अब एंट्रीज देखो एवरीवन. मैं कैसे एंट्री देखता हूं, देखो मेरा देखने का तरीका एंट्री पे. ठीक है. फर्स्ट एंट्री हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए. कैपिटल के क्रेडिट पे, जिस अकाउंट के क्रेडिट पे होता है वो क्रेडिट रहेगा, मतलब पी के क्रेडिट रहेगा, के क्रेडिट रहेगा, एंड जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट रहेगा. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500, टू पी 4,500, टू के 3,000. ये फर्स्ट एंट्री हो गई. एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एक हम एंट्री रहेगी. अब रिवैल्यूएशन की एंट्री डालेंगे. ये मत देखो, ये मत देखो, बैलेंस शीट मत देखो, यहाँ पे देखो. या इसके 3 एंट्रीज डालेंगे, हमेशा 3 एंट्री डालेंगे. एक डालेंगे प्रॉफिट की, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री. सेकंड एंट्री रहेगी लॉस की, दिस विल बी द सेकंड एंट्री. हमेशा एक साथ लिखेंगे. एंड तीसरी एंट्री रहेगी अकाउंट क्लोज करने की. ठीक है. हमेशा रिवैल्यूएशन के 3 से ज्यादा एक भी एंट्री नहीं रखने की. एक रहेगी प्रॉफिट की एंट्री, मतलब रिवैल्यूएशन को जो क्रेडिट हुआ है उसकी एंट्री. दूसरे की लॉस की एंट्री, मतलब रिवैल्यूएशन को जो डेबिट हुआ है वो. एंड तीसरी रिवैल्यूएशन क्लोज की एंट्री. 3 एंट्री से ज्यादा एक भी एंट्री नहीं करनी है. ठीक है. कभी कभी वो टेक्स्ट बुक में अलग अलग एंट्री लिखते बैठते, इतनी एंट्रीज करनी भी नहीं है. कंबाइंड एंट्री डालेंगे. तो देखो क्या, कौन सी एंट्री डालोगे? बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग. जिसके सामने बाय है वो डेबिट है एंड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट है. सो एंट्री लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950. लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950. दूसरी एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,000. 9,000 to revaluation. Being assets and liabilities revalued. टोटल कितना है वो? 10,950. Being assets and liabilities revalued. नरेशन अपना कांस्टेंट रखते जाओ, ज्यादा मत सोचते जाओ. नरेशन लिखने को मार्क्स है. ठीक है. तो नॉर्मल लिखते जाओ, ज्यादा मत सोचो. हो गई इसकी एंट्री? यस सर, इसकी एंट्री हो गई. अब रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डालेंगे. रिवैल्यूएशन के डेबिट पे टू आरडीडी, टू स्टॉक, टू मशीनरी. एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू. ये लॉस की एंट्री डाल रहे हो आप लोग. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट का अमाउंट बाद में पता चले, डोंट वरी. जो जो पता है वो लिखो. टू आरडीडी 600,
आरडीडी 600 से इंक्रीज हुआ था 2, उसके बाद क्या है, स्टॉक 3600, फिर लिखो 2, मशीनरी 750, और तीनों की टोटल आएगी 50, 12, 19, 1 कैरिड 4, 4950। हो गई एंट्री कंप्लीट? यस, एंट्री होगी कंप्लीट, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे, यस, हो गई एंट्री रिवैल्यूएशन की, यस। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री डाली, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डाली। अब रिवैल्यूएशन क्लोज करने की एंट्री आएगी, क्या आएगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे क्लोज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है 2p 2k। ओके, आई थिंक देयर वाज सम कनेक्शन एरर, ठीक है, एट माय एंड, राइट। सो आई डोंट नो, सुबह भी वो थोड़ा प्रॉब्लम आया था 11 का लेक्चर लेते हुए। ओके, या लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। मीनवाइल एक दो बच्चे मीटिंग लीव की है शायद से अब बीच, तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूं। या सो अब देखो क्या एंट्री आ गई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लेट मी शेयर, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा बिकॉज आईपैड पे वाईफाई का कनेक्शन है और लैपटॉप पे हॉटस्पॉट का है। लेट मी चेंज, हाँ, नाउ आई कैन शेयर, यस, गुड, या एवरीवन ध्यान देना, नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। सो हमने क्या एंट्री डाली, हमने एंट्री डाली इसकी, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, मैं तब तक एंट्री रिटेड करता हूं, लिख लेना, ठीक है, एंट्री लिख लेना, एंट्री है, एंट्री लिख लेना। क्या एंट्री थी, एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्रेडिट 3600 टू के क्रेडिट 2400, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000 टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3600 to K capital account credit 2400, being profit on revaluation, being profit on revaluation distributed between old partners in the old ratio। नरेशन ठीक से लिखते चलो, ठीक है। being profit on revaluation transferred to old partners in their old ratio, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो आ गया, सो इसकी भी एंट्री लिख दी, मैं भी लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल में ऐड करना है तो कैपिटल को क्रेडिट करना है, 2p and 2k, कितना था 6000, 3600 and 2400, being profit on revaluation distributed among old partners in old ratio। रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, 3 एंट्री करने, हमेशा 3 एंट्री करने हैं, एक प्रॉफिट, एक लॉस और एक क्लोजर की। डोंट कंबाइन दोज एंट्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, 3 अलग एंट्री। उसके बाद अब पार्टनर कौन कौन सी एंट्रीज कर दिए, एक एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री कर दी, फिर रिवैल्यूएशन के 3 एंट्रीज डाल दे। अब क्या गुड, वो कैपिटल आएगा उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 30,000 30,000 आशास कैपिटल, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। ध्यान देना कौन सी एंट्री हुई अभी तक, अगर आपको समझ में आता है, हमने इसकी एंट्री डाल दी, 600 की एंट्री डाल दी, हमने 3600 की एंट्री डाल दी, 1950 को रिवैल्यूएशन के थ्रू 750 की एंट्री डाल दी, 9000 की एंट्री डाल दी, बराबर, हमने ये सब एंट्रीज डाल दिया।
फिर उसके बाद ये रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री डाल दी एंड उसने 30,000 कैपिटल लाया, उसकी एंट्री बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद लिखो, उसके बाद क्या लिखोगे, उसने जो 15,000 कैपिटल लाया है, 30,000 कैपिटल लाया और 15,000 का गुडविल लाया, उसकी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल। पहले गुडविल को क्रेडिट करो, बीइंग शेयर इन द गुडविल ब्रॉट इन कैश, शेयर इन द गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश। फिर ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्लोज कर दो उसको। क्रेडिट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू, किस किसने सैक्रिफाइस किया, पी टू के। 15,000 में से पी को कितना मिला, हमने यहां पे निकाला था, 15,000 में से पी को कितना मिला, 9,000 एंड के को कितना मिला, 6,000, 9,000, 6,000। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वर्डिंग होनी चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये होने के बाद वो पार्टनर इसमें से 50% लेके गए, पार्टनर्स 50% लेके गए, इसकी एंट्री आएगी पी के डेबिट पे, के डेबिट पे टू बैंक। सो पी डेबिट, के डेबिट टू बैंक, पी अकाउंट डेबिट 4,500 लेके गए ना कैपिट उसमें से, के डेबिट 3,000 टू बैंक, being 50% goodwill withdrawn by partners, 50% of the goodwill withdrawn by the partners। ठीक है, अच्छा इसके सिवा अब कोई मेरी एंट्री बाकी है क्या, ये भी लेके गया, ये एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन गुडविल की एंट्री हो गई, कैपिटल आने की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई, लेके गए। कैपिटल में कोई भी एंट्री मिसिंग नहीं है, रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, बैंक की ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, कोई एंट्री बाकी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की कभी एंट्री नहीं डालनी, गलती से भी नहीं है, मैं भी कल जाके बोलता तो एंट्री मत डालो, राइट। 600 की एंट्री रिवैल्यूएशन के थ्रू हुई है, 3,600 के रिवैल्यूएशन के थ्रू हुई है, ये ऑल एंट्रीज आर डन, बस ये एंट्रीज, ऑल दीज आर द एंट्रीज बस। बट जर्नल को टैली करना होता है, जर्नल की टोटल लिखनी होगी एग्जाम में। ऑर्डर में एंट्री डालना, इट्स योर चॉइस, देयर इज नो ऑर्डर, ऑल ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एक ही दिन पे सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना। सो जनरली क्या क्या सीक्वेंस में एंट्री रहेगी, पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर क्या रहेगा गुडविल, सॉरी पहले क्या रहेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, फिर रहेगा रिवैल्यूएशन, फिर रहेगा गुडविल, ये इसमें रहेगा, ठीक है। आगे सो उनके एंट्रीज देखो, हो गया, दे हैव यूज्ड P&L एडजस्टमेंट इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो ये लॉस की एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री है, ये रिवैल्यूएशन क्लोज करने की एंट्री है, बराबर। फिर उसने कैपिटल लाया, उसने गुडविल लाया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वो गुडविल लेके गए। जनरली इसी मैंने देखा नहीं था आंसर, टू बी वेरी फ्रैंक, इसी सीक्वेंस में जनरली एंट्री होती है, आप आगे पीछे एक आधे हो गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल द एंट्रीज ऑन ए सिंगल डेट 1 अप्रैल 2019। सो आगे पीछे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कि ऐसे ही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। आगे एग्जामिनर आल्सो अंडरस्टैंड दैट थिंग, यू कैन राइट बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, लिख दो ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, जो भी लिखना है लिखो, सिंपल होता है, बीइंग रिवैल्यूएशन के टाइम एक ही लिखते जाओ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, ठीक है। एग्जामिनर इतना अंदर जाके नहीं देखेगा कि आपने नरेशन एग्जैक्टली क्या लिखा है, बट एक नरेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे तो ये P&L एडजस्टमेंट था, 6,000 प्रॉफिट था, देखो कैसे लिखा है, ध्यान देना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे ठीक से लिखना है, ठीक है। गुडविल अकाउंट दे डोंट आस्क एंड डोंट आल्सो प्रिपेयर, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
सर हमने जनरल एंट्री लास्ट में लिखे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बोलता हूँ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स हु विल डायरेक्टली पास द एंट्रीज, ऐसे भी बच्चे होते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन द लेजर्स, वो डायरेक्टली एंट्रीज लिखेंगे, दे डोंट प्रिपेयर एनी लेजर, डायरेक्टली लिखते, तो उनको कोई लेजर का सवाल ही नहीं है। अगर कोई बच्चे लेजर के थ्रू करते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा 10 एक मिनट, बट ठीक है, 12 के लिए उतना चलता है, ठीक है। सो अगर वो वैसे भी करते हो तो डोंट वरी ना, आप पहले एग्जाम में लिखते टाइम क्या करने का, पहले 2 पेजेस ब्लैंक रखने के एंट्रीज के लिए, फिर लेजर लिखने का, और एंट्रीज इस साइड लिखने के। अब मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, इफ दे आस्क यू टू राइट जनरल एंट्रीज, तो पहले 2 पेजेस ब्लैंक रखो, लेजर करो, फिर पहले 2 पेजेस पे एंट्री लिखो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अच्छा एंट्रीज, अरे एंट्रीज टेक्स्ट बुक में भी है अगर लिखना ही तो। एंट्रीज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और मैंने बोला ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजन इज वेरी सिंपल, ऑल एंट्रीज आर ऑन ए सिंगल डेट। हाँ, अलग अलग डेट पे एंट्रीज है तो उस डेट के हिसाब से डालना होता है, बट एडमिशन रिटायरमेंट डेट सब एक दिन के एंट्रीज होते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए दोनों करो, ठीक है। आगे जल्दी करो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी चेक 3 कौन सा है। आई डोंट वांट टू डायरेक्टली गो टू द कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। या वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3, गुड। उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, जनरली कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में लिखा होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, आनंद एंड रोहित आर द पार्टनर्स। 3-4 सेकंड स्क्रीन लैगिंग पे, हाँ। नो नो मैडम, गुडविल विड्रॉन नहीं है वो। यू कैन से गुडविल विड्रॉन बट डोंट से गुडविल टू गुडविल, मत बोलो, एंट्री गलत होगी, टू बैंक की है। वो गुडविल लेके जा रहे हैं, हमने पहले उनको जेब में पैसे डाले, उनको जो करना है उस पैसे से वो करे, उनकी मर्जी है। इट इज काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स, लोग उसको बोलते हैं गुडविल विड्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट यू कैनॉट यूज द वर्ड लाइक अकाउंट गुडविल विड्रॉन, यू हैव टू यूज कैपिटल टू बैंक, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेके गए ना इसलिए, दैट इज गुडविल विड्रॉन, कोई गल नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बट अकाउंट कैनॉट बी गुडविल विड्रॉन, अकाउंट का नेम कैनॉट बी गुडविल विड्रॉन। Anand and Rohit are the partners sharing profit losses in the ratio of 4:1. Anand and Rohit are the old partners, old ratio is 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. मैं वैल्यूज भी नहीं देखता हूँ, कैपिटल्स, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ क्वेश्चन में लिखे ना लिखे, हमारा काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हिडन एडजस्टमेंट की तरह है। सो 90,000 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 90,000 4:1, 90 डिवाइड बाय 5, 18×5 = 90, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 18×3 = 54, 70,000 एंड 18,000। आनंद के कैपिटल में ऐड करेंगे 70,000, रोहित के कैपिटल में ऐड करेंगे 18,000। देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, गुडविल, ओ गुडविल इज इन बैलेंस शीट, इट इज ऑलरेडी। हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, एक ये बोलेंगे थोड़ा इसको इंक्रीज करो, इसको थोड़ा रेज करो और 1 लाख करो एग्जांपल, या बोलेंगे उसको राइट ऑफ करो, कुछ भी बोलेंगे, या रेज करके राइट ऑफ करो भी बोल सकते हैं। 10,000 इंक्रीज करो और फिर 1 लाख राइट ऑफ करो। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ऑलरेडी गुडविल है, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑलरेडी गुडविल है, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको 1 लाख करो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या है, भाड़ में गया, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ठीक है। अभी कितना है 90, बोलेंगे 1 लाख करो, तो मैं गुडविल में ऐड करूंगा 10,000, सो दैट वो 1 लाख हो जाएगा, एंड इन दोनों के रेशियो, इन आनंद एंड रोहित को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 10,000 दे दूंगा। असेट में ऐड करूंगा 10,000 और कैपिटल में ऐड करूंगा 10,000। दूसरा ऑप्शन बोलेंगे इसको 50,000 करो, क्या बोलेंगे 50,000 करो, तो मैं 90 से
40,000 माइनस करूंगा डिप्रेशन जैसे, माइनस राइट ऑफ बोल दूंगा 40,000, एंड इन दोनों के कैपिटल से 40,000 माइनस करूंगा, मतलब उनको डेबिट करूंगा 4:1 में, ठीक है। या बोलेंगे इसको 1 लाख करो और बाद में उस 1 लाख को राइट ऑफ करो, दो एक्शंस लेने को बोलेंगे, दो बोलेंगे 90,000 को 1 लाख करो एंड फिर उस 1 लाख को राइट ऑफ करो। सो 90 से 1 लाख करने के लिए जो 10,000 है ना, वो फर्स्ट एक्शन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, 10,000 जो रहेगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में बटेगा। एंड फिर वो 1 लाख से 0 करने का जो सेकंड एक्शन है, 1 लाख का लॉस हो जाएगा, वो लॉस न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो में बटेगा, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो में बटेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने 3 केसेस बोले हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना क्या बोल रहा, पहले बोला 90 को 1 लाख करो, वो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एक ही एक्शन है। 90 को 50 करो, 40,000 का लॉस है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 90 को 1 लाख करो एंड फिर उसको 0 करो, रेज करो 10,000, फिर पूरा का पूरा राइट ऑफ करो। तो देयर आर 2 एक्शंस इन द वन क्वेश्चन। फर्स्ट एक्शन 90 से 1 लाख करना ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एंड फिर उस 1 लाख को 0 करना, राइट, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ठीक है। अब आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन, उन्होंने बोला गुडविल राइट ऑफ करना, एक ही एक्शन बोला है, मैंने लिख के दिया था, इफ देयर आर 2 एक्शंस कॉन्जिक्यूटिव 2 एक्शंस, पहले एक्शन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, सेकंड सॉरी पहले एक्शन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, सेकंड एक्शन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, बट इस क्वेश्चन में एक ही एक्शन बोल दी, क्या, उसको राइट ऑफ करना है, इसको 0 करना है। सो 90 को 0 करना है, एक ही एक्शन है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आगे मैं वो लिख के भी दूंगा, डोंट वरी। 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ओके नो इश्यूज, इक्विपमेंट को राइट ऑफ करना है, अगेन लॉस, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसको हाईलाइट करके रखना। इफ यू रिमेंबर आपके 11th के सिंगल एंट्री में ऐसे हमने किए थे, इफ यू रिमेंबर अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपर्ली, कोई मुझे इसकी वैल्यू बोलेगा, मुझे स्टॉक की करेक्ट वैल्यू चाहिए, स्टॉक इज 54,000, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, कितना है, हमने 11th के सिंगल एंट्री में किया था, इफ यू रिमेंबर, गलत, श्रावणी इट्स रॉन्ग, तनव ओके गुड, पलकेश, पलकेश गलत, तूने उसमें 10% ऐड किया भाई, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये 90% वैल्यू है जो तुझे बैलेंस शीट में दी है ना, इट इज 90% ऑफ द ओरिजिनल। सो जब भी ऐसे लिखा जाता है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, देखो ये जो 54,000 है, उन्होंने क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो मैं क्या करूंगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, 100 माइनस 10, अंडर वैल्यूड है तो -10 करूंगा, ओवर वैल्यूड होता तो +10 करूंगा, सो -10 करूंगा, अंडर वैल्यू होगा तो ऑलवेज रिमेंबर जो बैलेंस शीट की वैल्यू वो लिखो, 100 लिखो, हमें 100 ढूंढना है, एंड बैलेंस शीट में अगर लिखा है अंडर वैल्यूड तो ये साइन माइनस रहेगा, अगर बोले ओवर वैल्यूड तो ये साइन प्लस रहेगा, इफ यू रिमेंबर। सो उन्होंने बोला है बैलेंस शीट में जो वैल्यू है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो मैंने माइनस रखा, कितने परसेंट, 10%, -10। अगर बोलते अंडर वैल्यूड बाय 20% तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 80 करता, अंडर वैल्यूड बाय 30% 100 डिवाइडेड बाय 70 करता, अंडर वैल्यूड बाय 40% 100 डिवाइडेड बाय 60 करता, 100 माइनस 40। अगर ओवर वैल्यूड बाय 10% लिखा होता तो क्या करता, ओवर वैल्यूड बाय 10% तो 100 डिवाइडेड बाय 110, ओवर वैल्यूड बाय 20% 100 डिवाइडेड बाय 120, ओवर वैल्यूड बाय 30% 100 डिवाइडेड बाय 130, ठीक है। सो दिस विल बी 60,000। सो 60,000 का स्टॉक है, 10% कम दिख रहा है, 60,000 माइनस 6,000, उसका 10% इज 54,000, ठीक है। सो हमें 54,000 को 6,000 से ऐड करना है, हमारे लिए गेन है, उसको हाईलाइट करके रखना वीआईपी, बच्चे कैलकुलेशन में एरर करते हैं। आगे डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर इरिकवरेबल बट डेट्स लॉस,
हाँ, नचिकेत will introduce 1,200 for 2/5 share in the firm. 2/5 share in the firm. देखो जब ऐसे लिखते हैं, गुडविल राइट ऑफ करो, गुडविल रेज करो, रेज करके राइट ऑफ करो, तब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता. इनमें से कुछ भी नहीं तो गुडविल कैश में लाएगा. दीज आर ऑप्शंस. रेज द गुडविल, राइट ऑफ द गुडविल, रेज और राइट ऑफ एंड ब्रिंग इन कैश. ये अलग अलग ऑप्शंस है. एक में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन में रहेगा. अनंत विड्रू ₹60,000 फ्रॉम द बिजनेस. अनंत ने 60,000 बिजनेस से विड्रॉ किया. दैट हैज टू बी ड्रॉइंग्स. वो क्या रहेगा? ड्रॉइंग्स. ठीक है. प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ द गुडविल. मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. मुझे पता है उन्होंने खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है. स्टिल आई विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. एंड उन्होंने हमें खाली गुडविल की एंट्रीज बोली है, फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. उसमें से जो आपको चाहिए वो आप ले लो. ठीक है, एग्जाम के लिए. प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर, कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. एंड उसमें एंड में मैं थोड़ा एक समरी लिख के दूंगा, एक अभी अंडर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन का पेज नंबर, और मैंने गुडविल के एडजस्टमेंट के 3 ऑप्शन जो बोले थे वो पेज नंबर 107 सॉरी 139 in the books of the new firm. Balance sheet as on 1st April 18. और जो फाउंडेशन की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे समझो कि आपको ये फाउंडेशन में भी सेम है. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म सोचो. लॉन्ग टर्म 1st April 18. 12th को तो है ही है. ठीक है. आफ्टर एडमिशन. So whatever you learn has to be long term. Your practice makes man and woman perfect. Okay. Revaluation account. यस. उसके बाद करेंगे कैश या बैंक अकाउंट, जो भी लिखा होगा ऑलवेज प्रिपेयर. कुछ नहीं होता है. कैश ऑब्लिक बैंक. रिवैल्यूएशन अकाउंट. देयर इज कैपिटल अकाउंट. कौन 3 पार्टनर्स है? आनंद, रोहित एंड तीसरा कौन है? नचिकेत. आनंद, रोहित एंड नचिकेत. ओके. बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड असेट्स. ठीक है. एवरीवन. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब जो जो लिखा है जी, राइट, बैलेंस शीट को एक जगह पे. लेट्स स्टार्ट. कैपिटल्स कैपिटल के क्रेडिट पे आएंगे, कोई गुंजाइश नहीं. बाय बैलेंस डॉट डाउन. इसकी कभी भी जर्नल एंट्री आती नहीं. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री आती नहीं. हाँ. 1,35,000 एंड 75,000. फिर से रिजर्व फंड है, आग बंद करके डिस्ट्रीब्यूट करो. बाय रिजर्व फंड
कैपिटल में ऐड करना है, कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट, रिजर्व फंड, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 4:1. 72,000 मैंने निकाला था एंड 18,000. देन उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में ऊपर जगह रखना कैपिटल के लिए, क्रेडिटर्स एडमिशन के बाद के कैपिटल्स आ जाएंगे, ठीक है, नए कैपिटल्स विच इज 54. कोई चेंजेस नहीं क्रेडिटर्स में, इवन बिल्स पेएबल में भी कोई चेंजेस नहीं, 6,000. उसके बाद गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करने को बोला, 90,000 का गुडविल है, राइट ऑफ करना है, डिक्रीज करना है, लॉस है, टू गुडविल. ओपनिंग लाइन में कुछ मत लिखते जाओ बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस की लाइन होती है, इसमें कभी भी कुछ मत लिखते जाओ, नीचे लिखते जाओ, टू गुडविल into bracket 4:1. 72,000 and 18,000 किस में बटेगा? रेज करोगे तो ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करोगे तो ओल्ड इन ओल्ड, एक ही एक्शन है, एक ही एक्शन है, ठीक है. इसमें किसी का डाउट है तो पूछो. सर जनरल रिजर्व फंड्स आर सेम, नो, रिजर्व इज डिफरेंट, फंड इज डिफरेंट, बट दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. अकाउंटिंग के लिए सेम है हमारे लिए अब भी, बट वैसे देखा जाए तो उनमें थोड़ा मीनिंग अलग, रिजर्व्स अलग होते हैं, फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं, रिजर्व्स वैसे ही रखे जाते हैं, फंड इन्वेस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज स्मॉल डिफरेंस, अदरवाइज अकाउंटिंग के लिए दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू ओल्ड इन ओल्ड, ठीक है. आगे नेक्स्ट, सो गुडविल एक ही एक्शन बोली है, एक ही एक्शन है तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, आंख बंद करके एक ही एक्शन है, फिर रेस करने की हो या राइट ऑफ करने की हो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो. गुडविल डिक्रीज हो गया, असेट डिक्रीज हो गई, लॉस हो गया, इन दोनों के कैपिटल से माइनस किया, ठीक है. आगे नेक्स्ट, they will give in the question, sir how to understand that only write off and then raise. ऐसे कभी नहीं होगा, raise and then write off. पहले raise करने को बोलेंगे, without goodwill how can you write off? so पहले raise बोलेंगे फिर write off बोलेंगे. सो क्वेश्चन में लिखा होगा, अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट क्या लिखा है, राइट ऑफ करने को बोला है, तो क्या सोचना है, खाली राइट ऑफ करना है, ठीक है. ऐसे सो हिंट रहेगी ना क्वेश्चन में, कुछ तो लिखा होगा, जैसे गुडविल पहले ही 90,000 का और नीचे लिखा है राइट ऑफ, तो करो राइट ऑफ, रेज करके राइट ऑफ करना है तो लिखेंगे द पार्टनर डिसाइडेड टू रेज द गुडविल एंड आफ्टर एडमिशन दे डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ऐसे पूरा सेंटेंस रहेगा, आफ्टर एडमिशन दे डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ऐसे क्लियरली लिखा होगा, ठीक है. नेक्स्ट, हाँ चलो गुडविल राइट ऑफ हो गया, यस. असेट में 0 हो गया, इसका मतलब इक्विपमेंट्स उसमें चेंजेस है, इन कॉलम में रखो. हाँ, कितना है 45,000, बाद में करते हैं एडजस्टमेंट, पहले मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ. स्टॉक इन कॉलम में रखो. स्टॉक को कोई चेंजेस नहीं करे, आई डोंट नो, हाँ उसको भी चेंजेस है 54, एक दो लाइन रखो. फिर डेटर्स है, डेटर्स में भी इरिकवरेबल कुछ तो था, इन कॉलम में रखो. कितना 1,20,000. कैश का अकाउंट ओपन किया है, डेबिट है, डेबिट पे जाएगा 51,000, डेबिट रिमेन्स डेबिट. गुड. अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, मैं येलो पेन से लिख रहा हूं एडजस्टमेंट्स, ठीक है. आगे द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, पहले ही राइट ऑफ कर दिया, देखो गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एडजस्टमेंट 1 डन. 1/4 of the equipment to be written off. 1/4 means 25%. Less depreciation at the rate of 25%. 1,250 I think. I don't know. 45,000. Oh नहीं गलत, 11,250 बराबर, 11,250. 44,000 का 1/4 11,000 आएगा, 1,500 2250, ठीक है. सो कितना बचेगा 750, तो ऐसे दिख रहा है, 2 मतलब 3 चाहिए, 33,250. सो इक्विपमेंट डिक्रीज के 11,250 से, लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट पे, टू इक्विपमेंट. एंट्री हो रही है, दिमाग में एंट्री आनी चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 11,250. एंट्री दिमाग में चलनी चाहिए, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिख रहे हो तो दिख के आना चाहिए, रिवैल्यूएशन डेबिट टू
राइट, इक्विपमेंट। आगे खुद से बात करना सीखो। आगे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो यहां पे लिखो एड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू हुआ है, अब उसको ठीक करना है। अंडर वैल्यू बाय कैसे करोगे? 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा 100 लेने का। 100 अब आप वैल्यू ढूंढ रहे हो ना, तो 10 ले लो। 100 या 10 दोनों में से कुछ भी चलेगा। डिवाइड बाय 100 माइनस 10, तो आपको इनर वैल्यू मिलेगी 6,000, तो ये आ जाएगा 60,000। अगर आप 100 लोगे तो आपको 60,000 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 100 लोगे तो 60,000 मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 लोगे तो 6,000 मिलेगा। अगर बोलते हैं अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो मैं 20 डिवाइड बाय 80 लेता। 20 डिवाइड बाय 80, उन्होंने क्या बोला है? अंडर वैल्यूड। आपको ये वाली वैल्यू ढूंढनी है ना, कितना ऐड करना है वो ढूंढना है। अगर बोला अंडर वैल्यूड बाय 10%, सो 10 डिवाइड बाय 90 ले लो, दोनों की टोटल 100 होनी चाहिए। अगर बोला है अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो 20 डिवाइड बाय 80 ले लो। अंडर वैल्यूड बाय 30%, 30 डिवाइड बाय 70 ले लो। ओवर वैल्यूड बाय 10% लिखा है, ओवर वैल्यूड बाय 10%, सो 10 डिवाइड बाय 110 ले लो। 10 डिवाइड बाय 110। अगर उन्होंने बोला ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो 20 डिवाइड बाय 120 ले लो, इनर वैल्यू ढूंढने के लिए। अगर बोला है कि 30% से और वैल्यू आए, तो 30 डिवाइड बाय 130 ले लो, इनर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट ये गेन हो गया। स्टॉक 54 से 60 हो गया। स्टॉक 54 से 60 हो गया, मतलब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। गेन है रिवैल्यूएशन रेट पे बाय स्टॉक। कितने से इंक्रीज हो गया? 6,000। एंट्री दिमाग में चलनी चाहिए। बाय लिखा है स्टॉक के सामने, मतलब स्टॉक डेबिट है। स्टॉक डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट, स्टॉक डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट 6,000 6,000। आगे डेटर्स 1,800 इरिकवरेबल, लेस बैड डेट्स। ओल्ड न्यू कुछ मत लिखते भाई। तो सो 1,18,200। Bad debts is loss, two debtors. Don't say bad debts, say debtors. और एंट्री क्या आएगी? टू डेटर्स लिखा है, रिवैल्यूएशन का डेबिट पे लिखा है, दिमाग में एंट्री चलनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 1,800 1,800। आगे फिर नचिकेत ने 1,000 1,20,000 कैपिटल के लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नचिकेत कैपिटल 1,20,000। कैश इंक्रीज होगी, राइट, कैपिटल इंक्रीज होगा बाय कैश 1,20,000। गुडविल के लिए कुछ नहीं लगेगा बिकॉज हमने ऑप्शन राइट ऑफ का चूज किया है। आगे आनंद विद्रॉ 60,000 फ्रॉम द बिजनेस। आनंद लेके गया, बाय आनंद। ड्रॉइंग्स है ना, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जरूरत होगी वो लेके गया टू कैश। आनंद के कैपिटल 60 माइनस होगा। आगे सो एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। कैन वी क्लोज द रिवैल्यूएशन? डेफिनेटली। आग बंद करके क्लोज करो। डेबिट इज मोर, जहां से मैं देख रहा हूं, सो इट इज 13,050। 12 13 13,050 minus 6,000, it is 7,050 7,050 by loss on revaluation transferred to loss क्यों? because debit is more, transferred to तीन। पहले कौन से पार्टनर थे? ए एंड आर। ए का रेशियो 4/5 था, इसका रेशियो 1/5 था, तो मैं पहले 1 ढूंढ सकता हूं। 5 1 जा 2, 5 4 जा 10, so 1410, उसका 4 टाइम्स 5640। सो लॉस है, कैपिटल माइनस होगा लॉस की वजह से। यहां पे क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट है, मतलब कैपिटल में डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस। कितना? 5640, दूसरा 1410। कभी भी रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व कभी भी न्यू पार्टनर्स को नहीं देने। ठीक है, आगे
नेक्स्ट सर रिवैल्यूएशन क्लोज कर दिया, गुड। सर हम कैश भी क्लोज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पहले हमारे पास 51,000 थे, उसने 1,20,000 दिए, हमारे पास 1,71,000 हो गए। फिर वो 60,000 लेके गया सर, तो हमारे पास 1,11,000 बाकी है। बाय बैलेंस कर इट डाउन 1,11,000, तो असेट में लिखेंगे बैंक या कैश 1,11,000। सर आप कैपिटल क्लोज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कैपिटल क्लोज कर सकते हो, बिकॉज आपने सब एडजस्टमेंट्स किए हैं, रिवैल्यूएशन भी क्लोज किया है सर, तो करो कैपिटल को क्लोज। इसका तो मुझे स्ट्रेट अवे दिख रहा है 1,20,000। एन का तो मैंने बोल दिया, अब बाकी बोलो। 72 मैं ओरली कर रहा हूँ। 72 गया, 1,35,000 में से 60 गया, 1,35,000 में से 60 गया, 75 मेरा कैलकुलेशन में लग रहता है। 75 में से 5 गया, 70 69 360। मेरे हिसाब से 69,360 है, चाहिए तो आप आपका कैलकुलेट करो, मैं मेरे हिसाब से हमेशा करता हूँ। ये कैंसिल हो गया, 75 से 1 गया 74, 74 से 4 गए 400, 73 600 से 10 गया 73 590, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एग्जाम में ऐसे कट मत करते बैठो, आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा परफेक्ट है पहला। दूसरा देखो, हर एक का कैलकुलेशन का तरीका होता है। आई कीप माई आईज ओपन, माइंड ओपन, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग खुला रखते जाओ, आ जाता है। 73 590 परफेक्ट है, तो कैपिटल्स कौन है इनका नाम? आनंद, रोहित एंड नचिकेत। आनंद का कैपिटल है 69 360, इसका कैपिटल है 73 590। कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट लिए कैपिटल चेंज हो जाते हैं। 1,20,000 0 5 1 carried 9 12 1 carried 14 14 14 plus 12 26। हाँ 950 950। हाँ 2 plus 4 6 6 plus 6 12 1 carried 27 27 32 32 3,22,950 मेरी असेट लाइबिलिटी टोटल आ रही है, असेट में भी उतनी आनी चाहिए। 750 950, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 3 3 11 12 ओके, 1 carried 4 10 10 plus 11 10 plus 11 21 21 plus 11 23 21 plus 1 22 22 plus 10 32। देखो टैली हो गया, लिखो। और फिर हम एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। मैं वीडियो 2 मिनट के लिए हाइड करता हूं, तो आप ठीक से लिख सकते हो, लिखो ठीक से। आपके सामने बैलेंस शीट है। जल्दी करो।
ओके, लास्ट, किसी का क्वेश्चन है इसमें अभी तक, किसी का डाउट है? ऑब्वियसली मैडम, जिस दिन पे एडमिशन होगा उस दिन पे हम बैलेंस शीट करेंगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या करते हैं, हमें एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट पूछते हैं। आज एडमिशन हो गया, आज की सीए फाउंडेशन में आज के भी पूछेंगे और 1 साल के बाद के भी पूछेंगे, वो तो इसमें थोड़ा और ज्यादा रहेगा। तो 12th में क्या है, आज एडमिशन हो गया तो आज की बैलेंस शीट करनी है, ठीक है, ऐसे। ये परफेक्ट होना चाहिए चैप्टर। 12th में 10 मार्क का तो मिनिमम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एंट्रीज लिखूंगा, ध्यान देना, एक एक एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री नंबर 1, देखो जो भी आप डेट लिखो इन द बुक्स ऑफ दारिद्र्यश, ठीक है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, पहले हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी एंट्री कर सकते हो, यस। बाय रिजर्व लिखा है, बाय, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट लिखो, 90,000, 90,000 था। टू, क्या दो पार्टनर का नाम था, ए एंड आर, टू एज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, इसको 70,000 क्रेडिट किया, इसको 18,000 क्रेडिट किया। ये एंट्री खुद होके करनी होती, वो आपको बोलेंगे नहीं। सेकंड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यस। अब कौन सी एंट्री करनी, रिवैल्यूएशन की, 3, प्रॉफिट लॉस एंड क्लोथ्स। प्रॉफिट एक ही है 60, बाय लिखा है, बाय, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, स्टॉक डेबिट होता है, उसको इंक्रीज करना है तो वो डेबिट किया जाएगा, बाय लिखा है मतलब वो डेबिट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बीइंग एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यूड और स्टॉक रिवैल्यूड, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड बस, ठीक है। कितने से, 6,000, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड। अब ये प्रॉफिट की एंट्री आ गई, रिवैल्यूएशन। अब लॉस की एंट्री डालेंगे, ये दोनों है, रिवैल्यूएशन 2, इक्विपमेंट टू डेटर्स, टू इक्विपमेंट टू डेटर्स। रिवैल्यूएशन की अमाउंट पता चलेगी, डोंट वरी, पहले जो पता है वो लिखो, 11 to 50, 1,800। अब टोटल लिखो उधर, 50, 10, 1 कैरिड, 12, 13, क्लियर है। अब फोर्थ एंट्री लिखेंगे, चलो फोर्थ एंट्री। अब ये क्लोज करने की एंट्री, यहां पे बाय ए बाय आर, बाय ए बाय आर, और एक कैपिटल के डेबिट पे गया है, आप चाहिए तो देखो कैपिटल के डेबिट पे। अगर उधर से एंट्री नहीं समझ में आती, इधर से देखो, ए के डेबिट पे, आर के डेबिट पे, टू रिवैल्यूएशन, ए डेबिट, आर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ए डेबिट, आर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपको जिधर से इजी लगता है उधर से देखो। हाँ, एक ए को 5640, आर को 111410, 5640 1410, टोटल कितना है वो, 7050। यहां पे लिखोगे आप, इसका नरेशन होगा बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड, यहां पे लिखो बीइंग, राइट, इक्विपमेंट एंड डेटर्स रिवैल्यूड, सिंपल वर्ड्स में लिखो, ठीक है। यहां पे लिखो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, नरेशन फिक्स रहेंगे आपके, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री हो गई, यस। पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की एंट्री, फिर रिवैल्यूएशन एंट्री, फिर कैपिटल लाने की एंट्री, कैश टू एंड कैपिटल 1,20,000 टू एंड कैपिटल। आगे पीछे हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि सब एक दिन के एंट्रीज है, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कट करता, डोंट वरी। अब फिर सर गुडविल की एंट्री, गुडविल वो कैश में तो ले रहा है, बट गुडविल राइट ऑफ करने को बोला है उन्होंने, गुडविल राइट ऑफ करने को बोला है, टू गुडविल,
ए को डेबिट है, आर को डेबिट है, ए के डेबिट पे आर के डेबिट पे, तो ए डेबिट है, आर डेबिट है, टू गुडविल। एंट्री देख के आनी चाहिए, ए के डेबिट में तो ए को डेबिट, आर के डेबिट में तो आर को डेबिट, क्या लिखा है, टू गुडविल। ए को डेबिट है 72,000, आर को डेबिट है 18,000, 90,000 का गुडविल राइट ऑफ होगा। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप रिवैल्यूएशन कैपिटल भी ठीक से देखते हो ना, तो भी सब एंट्री आती है। मैं हिंट दे रहा हूं, रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल में सब एंट्री छुपी होती है। बैलेंस शीट देखो ही मत, कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट का एक इफेक्ट कैपिटल में या रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन ठीक से देखो, कैपिटल ठीक से देखो, सब एंट्री अपने आप बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे चलो। अब इसके सिवा कौन सी एंट्री बाकी है? ये तो एंट्री हो गई कैश लाने की, यस। ठीक है, ये 60,000 कैश लेके गया, ए के डेबिट पे, ए के डेबिट पे टू कैश है, कैश के क्रेडिट पे लिखा है बाय ए, बाय ए है मतलब ए डेबिट कैश क्रेडिट, ए डेबिट टू कैश क्रेडिट 60। ठीक है, ए डेबिट टू कैश। अच्छा, अब कौन सा अनटिक्ड है? सब कैपिटल के मैंने ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस छोड़ के सब एंट्रीज किए सर। रिवैल्यूएशन के मैंने सब एंट्रीज किए, यस। कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग छोड़ के सब एंट्री किए, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं डालनी, बाकी अंदर की एंट्री डालनी है सर, कर दी मैंने, मतलब मेरी सब एंट्रीज होगी, एक भी एंट्री मेरे से मिस नहीं होगी। तीन अकाउंट देखने के, कैश ठीक से देखने का, रिवैल्यूएशन ठीक से देखने का और कैपिटल ठीक से देखने का। उनके इसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस छोड़ के सबकी एंट्री डालने की। रिवैल्यूएशन में कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, वो अपने आप क्लोज हो जाता है, उसका कैपिटल में जाता है। ठीक है, कैश क्यों लिया कैपिटल की जगह? नहीं समझा, किधर लिया कैश क्यों जगह कैपिटल की जगह? आई डिडंट गेट यू सर, कैश क्यों लिया कैपिटल की जगह? कौन सा मैडम, कौन सा? इन एंट्री किधर है? ये उसने 1,20,000 लाया और ये ए 60,000 लेके गया। नहीं समझा श्रावणी, तेरा क्वेश्चन नहीं समझ। लास्ट वाले में ये वाली एंट्री मैडम क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। कोई कैश लेके जाता है पार्टनर, एंट्री क्या आएगी? कैपिटल टू कैश 60,000 60,000। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने खाली इसकी एंट्री लिखी और उन्होंने ये किया, बट मैंने पूरा किया है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हमें सब कुछ आ जाए। ठीक है, सो 4:46 हुए, आई कैन एंड टुडे सेशन। दो क्वेश्चंस किए, इन डिटेल किए, विथ लेजर विथ एंट्री। ठीक है, एक लिख के लेना एवरीवन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब लिखा होता है अंडर वैल्यूड बाय X%, तो टू फाइंड आउट इनर वैल्यू, अंडर वैल्यूड वैल्यू कितने से अंडर वैल्यू हुआ है? अंडर वैल्यूड बाय वैल्यू, जितने से अंडर वैल्यू वो वैल्यू ढूंढनी है, तो बैलेंस शीट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 100 माइनस x टू फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अगर आपको वो ढूंढना है, बैलेंस शीट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 माइनस x। अगर आपको कितने से कम हुआ है ये ढूंढना है, कितने से कम हुआ है तो x ले लो, एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है वो ढूंढनी तो 100 ले लो। दोनों तरीके से आप आंसर ढूंढ सकते हो।
टू फाइंड आउट ओवर वैल्यूड बाय वैल्यू, ओवर वैल्यूड वैल्यू, ओवर वैल्यूड बाय कितने से एक्स्ट्रा हुआ है अगर वो ढूंढना है, यहाँ पे खाली एक्स ले लो, प्लस करना है, ओवर वैल्यूड है तो प्लस, टू फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू प्लस, दैट्स इट. ठीक है, किसी का डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज द हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल टेक ऑल द डाउट्स. सपोज ऐसे लिखा है बैलेंस शीट में वैल्यू 1,20,000 है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, बैलेंस शीट में वैल्यू 1,20,000 है एंड बोला इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बोला इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो इट इज 1 लाख, सॉरी ये 20,000 आएगा. लेट मी चेक, 1/6, यस 20,000. मतलब वो कितने से एक्स्ट्रा है 20, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1 लाख. बैलेंस शीट में 1,20,000 दिख रहा है बट उसके एक्चुअल वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 20%, 20,000 एक्स्ट्रा है. अगर बैलेंस शीट में वैल्यू 1,20,000 है और लिखा है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 30%, अंडर वैल्यूड बाय 20%, बैलेंस शीट में वैल्यू 1,20,000 है, यहां पे बोला था इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%. अब बोल रहा हूं बैलेंस शीट में वैल्यू 1,20,000 है, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करो, अंडर वैल्यू तो 100 माइनस 20 80 करो, 1/4 आएगा 30, 30,000 से कम है वो, मतलब एक्चुअली उसकी वैल्यू 1,50,000 है. एक्चुअल वैल्यू ये ओवर वैल्यूड है, 20,000 से ओवर वैल्यूड है, सो 1,20,000 माइनस 20, एक्चुअल वैल्यू 1 लाख है. यहाँ पे 30,000 से कम है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1,50,000, ऐसे. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर. सो लिख लेना दूसरा एग्जाम्पल, लास्ट 5 minutes and then done, please hold on. Example, my lecture is day after tomorrow, right now? Goodwill 90,000, A and B are the partners, their PSR is कितना ले लो 3:2, ओके ठीक है. C is a new partner and new PSR is 3:2:1, ठीक है, तीनों का दिया है. अब ऑप्शन क्या है, बैलेंस शीट में गुडविल है के ऑप्शन 1 रेज टू 1 लाख, गुडविल रेज करो 1 लाख तक, मतलब हम क्या करेंगे गुडविल में 10,000 ऐड करेंगे एंड ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में 10,000 ऐड करेंगे, बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगी. सो एंट्री आएगी, लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रही है टू रिवैल्यूएशन, आप रिवैल्यूएशन के थ्रू भी लेके जा सकते हो बिकॉज रिवैल्यूएशन बाद में ओल्ड पार्टनर्स को ही बढ़ता है, आप रिवैल्यूएशन के थ्रू घुमा के भी लेके जा सकते हो बट डोंट टेक डायरेक्टली कैपिटल में डालो, टू ए एंड बी, राइट. 3:2 6,000 4,000 हो गया 10,000.
सो असेट में ऐड हो गया 10,000, कैपिटल में 10,000 हो गया। कोई बोलेगा सर मैं रिवैल्यूएशन के थ्रू लेके जाऊं, फिर भी आंसर वही रहेगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन भी एंड में किस में चला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2, राइट ऑफ टू ₹40,000। अब भी गुडविल कितने का है, अब भी गुडविल 90 का है, और बोला है राइट ऑफ टू 40,000, मतलब उसको रिड्यूस करना है, 40,000 तक लेके जाना है, मतलब 50,000 माइनस करना है असेट से, असेट से कम हो गया तो लाइबिलिटी से भी कम हो जाएगा 50। लॉस होगा, गुडविल 90 डेबिट है, उसको 40 डेबिट करना है, मतलब हमें उसको 50 से क्रेडिट करना है, तो एंट्री आ जाएगी। और ये जो लॉस होगा किसका लॉस होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड मैं लिखता हूं समझने के लिए, हमेशा ओल्ड में, या मैं यहाँ पे रेशियो जानबूझ के चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे न्यू रेशियो इज 1:1:1 करता हूं, मतलब कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, 1:1:1 क्वेश्चन में चेंज कर दिया। सो हमें 90 को 40 करना है, मतलब 50,000 से गुडविल कम करना है, 50,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस ए को बेयर करना होगा, 20,000 का लॉस बी को बेयर करना होगा, और बैलेंस शीट में गुडविल आगे से कितने का दिखेगा, 40,000 पे दिखेगा, कितने पे दिखेगा, 40। ऑप्शन 3, राइट ऑफ एंटायर गुडविल, ओ पूरा राइट ऑफ एंटायर गुडविल, यहां पे तो 50,000 राइट ऑफ करने को बोला था, यहां पे तो पूरा बोला है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरे पास 90,000 का गुडविल है, मुझे पूरा राइट ऑफ करना है, असेट से जीरो हो जाएगा, और उतना पूरा का पूरा लॉस ए एंड बी को झेलना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को, बिकॉज एक ही एक्शन है। ठीक है, सो एंट्री यही आएगी बट वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंट्री यही आएगी बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए एंड बी 90,000 इन 3:2, 90,000 से गुडविल चेंज होगा, बैलेंस शीट में गुडविल जीरो दिखेगा, बैलेंस शीट में गुडविल जीरो दिखेगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 54,000 ए को झेलना पड़ेगा, 36,000 बी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, देन तो मैं यहां पे चाहे तो लिखता हूं आपको समझने के लिए, यहां पे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट गुडविल विल अपीयर एट 1 लाख रेज टू 1 लाख, 90 प्लस 10 1 लाख हो जाएगा। यहां पे इस ऑप्शन में बैलेंस शीट में गुडविल विल अपीयर एट 50,000, सॉरी 40,000, राइट ऑफ टू टू वहां तक लेके जाना है 40, इसमें हमें रेंटा राइट ऑफ करने को बोला है। तो इस ऑप्शन में बैलेंस शीट में गुडविल जीरो दिखेगा, जीरो दिखेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4, अभी तक हम एक ही एक्शन ले रहे थे, गुडविल या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, थोड़ा डिक्रीज करे पूरा डिक्रीज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्रीज इज डिक्रीज, पूरा करो थोड़ा करो, बट एक ही एक्शन है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, गुडविल इंक्रीज हो रहा है, गेन है, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, गुडविल डिक्रीज हो रहा है, लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो। अब मैं बोलूंगा रेज द गुडविल, रेज गुडविल टू 1 लाख एंड देन राइट ऑफ, और फिर राइट ऑफ करो। तो दो एक्शन है, पहली एक्शन रेज, रेज अमॉन्ग ओल्ड इन ओल्ड, तो पहले उस 90,000 जो बैलेंस शीट में 90,000 होगा उसको 10,000 से इंक्रीज करना है, मतलब ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री कॉपी पेस्ट हो गई। गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, 90 प्लस 10 वो 1 लाख हो जाएगा, 2A 2B 6,000 4,000, 2A 2B, गुडविल 10,000 से इंक्रीज किया, गुडविल रेस अप टू
अप टू 1 लाख से इंक्रीज नहीं करना है, अप टू जाना है, मतलब 10,000 से इंक्रीज करना है। ठीक है, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। एंड फिर राइट ऑफ अमॉन्ग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, बिकॉज ये सेकंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन ओल्ड इन ओल्ड, सेकंड एक्शन न्यू इन न्यू। सो गुडविल डेबिट होगा, क्रेडिट करना होगा। ए को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे। 2 गुडविल, आपने कितना गुडविल लेके गए थे? 1 लाख पे गए थे, बराबर। 1 लाख किया था, फिर राइट ऑफ कर रहे हो। 33,333, 30,333, 30,334 कर लो, कोई फर्क नहीं होता। सो सी को भी, नया पार्टनर को भी लेके राइट ऑफ किया। सेकंड एक्शन इज ऑलवेज न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। किसी का डाउट है इसमें? सो सिंपल क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको। पहले गुडविल बैलेंस शीट में या तो बोलेंगे उसको रेज करो, या बोलेंगे उसको थोड़ा राइट ऑफ करो, या बोलेंगे उसको पूरा राइट ऑफ करो, या बोलेंगे उसको थोड़ा रेज करो और फिर राइट ऑफ करो। थोड़ा रेज करो और पूरा का पूरा राइट ऑफ करो। जब दो एक्शंस बोलेंगे, ऑलवेज कसम खा लो, आज किसी आपके प्यारे बंदे की कसम खा लो कि अगर हम एक एक्शन लेंगे गुडविल पे तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, अगर हम सेकंड एक्शन लेंगे तो न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। एंड जब पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो वो गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा गुडविल में हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब नहीं, माफ करना मुझे, यहां इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, सी को लाने की जरूरत नहीं ना, सी के कैपिटल से माइनस हो गया, सी के कैपिटल से माइनस हो गया, डेबिट हुआ, मतलब उसके कैपिटल से अपने आप माइनस हुआ। उसने कैश लाई नहीं, इसलिए ऐसे किया है। अगर वो कैश लाता तो ये करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो कैश नहीं लाएगा, डोंट वरी। नहीं तो मतलब उसके 33,000 ले भी रहे हो और फिर उससे और कैश ले रहे हो, वो पागल हो जाएगा ना। कैश नहीं लाते तो ये ऑप्शंस है। ठीक है, चलो, बराबर 5:01 हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लेक्चर हुआ। ठीक है, संडे को ऑलमोस्ट एवरीवन वाज प्रेजेंट, दैट इज गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू।